Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss CCS Pension Rules 2021. It is part 1 and Rule 1 to 6. Today, I will cover. You know that in December 2021, again, Gazette is coming related to the CCS Pension Rules 2021. And it replaced CCS Pension Rules 1972. So जो CCS Pension Rules 1972 था उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर अभी उसको हम बोलेंगे CCS Pension Rules 2021. It is very important one. It is related to the old pension. Basically those employees joined the government job on or before 31st December 2003, 31st December 2003, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया है ऑन और बिफोर 31st December 2003 उनके लिए लागू होगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्रॉम 1st January 2004 NPS न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ है. तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get notification for upcoming videos. Definitely I will cover all the parts of CCS Pension Rules 2021. So please my friends, just go through the video till the end, and also in description box I will give my Telegram channel link and click on it and I will all the videos. So already I made 3 videos. Already I made 3 parts on CCS Pension Rules 1972. तो अभी उसका ज़रूरत नहीं है. अभी आपको देखना है CCS Pension Rules 2021. It is part 1 and in future I will cover all the parts. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensions Welfare, provision to Article 309 and Clause 5 of Article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules. यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा Article 309 and Clause 5 of Article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India related to the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules. इसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है. चलो फर्स्ट वन, CCS Pension Rules 2021, Rule 1, Short Title and Commencement. अभी मैं बताया फर्स्ट वन, these rules may be called the Central Civil Services Pension Rules 2021. Already this rule replaced CCS Pension Rules 1972. क्लियर. तो अभी ये न्यू रूल आ गया. इट ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू द ओल्ड पेंशन. जो CCS पेंशन रूल्स 1972 था उसमें कुछ पूरा अमेंडमेंट करके ये न्यू रूल आ गया. तो अभी हम इसको बोलेंगे CCS पेंशन रूल्स 2021. दे शैल कम इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. इसके ऊपर ऑफिशियल गैजेट जो पब्लिकेशन हुआ है 20th December 2021. We know that on the particular date the gazette notification is coming, means from this date this rule ऑलरेडी उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है. कि जिस डेट में गैजेट नोटिफिकेशन आता है उसी डेट से ये जो रूल का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट. इसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा. अभी रूल 2 को आएंगे. इट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन. सो यहां पर हम देखेंगे CCS पेंशन रूल्स 2021 अप्लीकेबल टू द फॉलोइंग एम्प्लॉइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CCS बेसिकली फॉर हुम CCS पेंशन रूल्स 2021 अप्लाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज रूल्स शैल अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31st day of December 2003, including civilian government servants in the defense services, appointed substantively to civil services and post in connection with the affairs of the union which are born on pensionable establishments. हम जानते हैं कि जो ओल्ड पेंशन है
basically this rule, it is applicable for the employees who joined the government job on or before 31st December 2003, क्योंकि 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू हो गया, न्यू पेंशन स्कीम, राइट. सो ऑल्सो इट इज applicable फॉर सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द डिफेंस सर्विसेज. जो डिफेंस सर्विसेज में जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, ये सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 उनके लिए भी लागू होगा. तो चलो अभी हम देखते हैं आगे में किन के लिए रूल्स लागू होगा. फर्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज पुट ऑन induction training on or before 31st day of December 2003 followed by appointment on regular basis after 31st day of December 2003. Those government servants already they did their induction training on or before 31st December 2003. जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 31 दिसंबर 2003 के पहले उनको इंडक्शन ट्रेनिंग मिला है और उसके बाद 31 दिसंबर 2003 के बाद उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट मिला है, उनके लिए ये लागू होगा. क्यों यहां पर दिया है, फॉर व्हाट रीजन इट इज एप्लीकेबल फॉर देम, ना प्रोवाइडेड दैट completion of the induction training was an essential condition for appointment on regular basis to the post. The government servant was eligible for a salary or a stipend during the period of such training, and the period of training was eligible for being counted as qualifying service in accordance with the provisions of CCS Pension Rules 1972. So those employees already got induction training before 31st December 2003, and after 31st December 2003 they got regular appointment. We know that when the employees join the government job, initially first they are getting induction training. So उनको इंडक्शन ट्रेनिंग मिल गया 31 दिसंबर 2003 से पहले उनको इंडक्शन ट्रेनिंग मिल गया. सो एट दैट टाइम एक्चुअली जितना पीरियड उनको इंडक्शन ट्रेनिंग मिला वो क्वालिफाइंग सर्विस में जाएगा. वो पीरियड में उनको सैलरी जो स्टाइपेंड उनको मिला तो ये क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा. यदि उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट उसके बाद होता है 31 दिसंबर 2003 के बाद ओके होने से भी उनको वो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 पहले था, अभी तो 2021 वही रूल लागू होगा. तो दे आर अप्लीकेबल फॉर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, राइट. तो फर्स्ट वन. सेकेंड वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट who was initially appointed on or before 31st December 2003 in an establishment or department of the central government whose employees were covered by a pension scheme other than the Central Civil Services Rules 1972. ये जो है basically the government servant they were initially appointed on or before 31st December 2003 in an establishment or department of central government whose employees were covered by any other pension scheme, covered by pension scheme other than the CCS Pension Rules 1972. वो भी कवर हो जाएंगे CCS Pension Rules 2021 में, वो कवर हो जाएंगे एज यूजुअल मैनर. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर जो सेकेंड में रिमेंबर करना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट whose employees were covered by a पेंशन स्कीम अदर दैन द सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, तो उनके लिए भी ये सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 उनके लिए भी लागू होगा. तो एज यूजुअल मैनर वो ओल्ड पेंशन में आ जाएंगे. इन ए स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैविंग ए नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम सिमिलर टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, ये भी उनके लिए लागू होगा. जो स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ओके. तो आपको स्टेट गवर्नमेंट यहां पर लेना है और ऑटोनोमस बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है, जिनमें नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, वो सिमिलर टाइप है, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 जैसा है, तो वो भी कवर हो जाएंगे. उनको भी वो भी ओल्ड पेंशन में आएंगे. सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है वो भी उनके लिए एप्लीकेबल होगा. and was subsequently appointed after 31st December 2003
in an establishment of a central government to which these rules apply, subject to the condition that the said government servant fulfills all other conditions for counting of service rendered in such establishment of the central government or state government or autonomous body in accordance with these rules or any general or special order issued in this regard. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो दिया है कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए वो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम था, जैसा CCS पेंशन रूल्स 1972 जैसा था, मगर आफ्टर 31 दिसंबर 2003 वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आ गए एंड वॉज सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड. वो पहले वो स्टेट गवर्नमेंट में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस में थे कि स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस में थे, उनके लिए नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम था जो सिमिलर लाइक CCS पेंशन रूल्स 1972. और 31 दिसंबर 2003 के बाद थ्रू टेक्निकल रेजिग्नेशन अगेन दे केम टू द डायरेक्टली दे केम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो जब डायरेक्टली वो आ जाते हैं तो उनके लिए ये जो ओल्ड पेंशन रूल्स है वो लागू होगा. वही चीज़ दिया गया है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो भी जो भी उनका क्वालिफाइंग सर्विस था प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट में और प्रीवियस सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट ऑटोनोमस बॉडी, और वहाँ पर उनको नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन मिल रहा था जो सिमिलर लाइक CCS पेंशन रूल्स 1972. नाउ थ्रू टेक्निकल, इट मीन्स आफ्टर दे गिव टेक्निकल रेजिग्नेशन दे कम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आफ्टर December 31, 2003. सो उनका जो प्रीवियस जो सर्विस, जो क्वालिफाइंग सर्विस था वो इंक्लूड होगा और एज यूजुअल मैनर वो CCS पेंशन रूल्स 2021 उनके लिए एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड आफ्टर 31 December 2003 to a civil service or post in connection with the affairs of the union, if he fulfills the conditions for coverage under these rules in accordance with any special or general order issued by the government in this regard. ऐसा कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनका अपॉइंटमेंट 31 December 2003 के बाद हुआ, बेसिकली टू ए सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ 31 December 2003 के बाद हुआ, मगर फिर भी वो ये रूल्स में आ जाएंगे CCS पेंशन रूल्स 2021 जो ओल्ड पेंशन में आ जाएंगे ड्यू टू द स्पेशल और जनरल ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड. यदि कुछ स्पेशल ऑर्डर और जनरल ऑर्डर इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन उनका अपॉइंटमेंट होता है 31 December 2003 के बाद, फिर भी वो ये रूल्स में आ जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल ऑर्डर बेसिकली रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट. सो ड्यू टू दिस ऑल्सो CCS पेंशन रूल्स 2021 इट इज एप्लीकेबल फॉर देम. Next one, persons who were regularly appointed in government service after 31 December 2003 but were conferred temporary status on or before 31 December 2003 in accordance with the casual laborers grant of temporary status and regularization scheme of Government of India 1993, notified by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, and such temporary status is followed without interruption by regular appointment in government service. ये क्या है ना, 31 December 2003 के पहले कैजुअल स्टेटस, कुछ कैजुअल लेबरर्स, उनका जो स्टेटस था, कुछ एम्प्लॉयज़ का उनका कैजुअल लेबरर स्टेटस था, तो उनको टेम्पररी स्टेटस मिल गया, राइट. तो अगेन December 31, 2003 के बाद उनको बेसिकली फिर वो परमानेंट हो गए, वो जो टेम्पररी स्टेटस था वो रेगुलर हो गया. तो यदि वो कंटिन्यू करता है तब ये रूल उनके लिए भी लागू होगा. वही क्लियरली दिया है, पर्सन्स हु आर रेगुलरली अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर, एक्चुअली पहले जो 31 December 2003 के पहले वो कैजुअल लेबरर्स थे, फिर उनका कन्वर्ट हो गया, टेम्पररी स्टेटस उनको मिल गया, तो फिर December 31, 2003 के बाद उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ, उनको परमानेंट स्टेटस मिला, मगर उनका सर्विस कंटिन्यू रहा. जब कंटिन्यू रहा तब CCS पेंशन रूल्स 2021 में आ जाएंगे और वो उनको एज यूजुअल मैनर ओल्ड पेंशन उनको उनके लिए भी लागू होगा. चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन, द केसेस वेयर इन द इवेंट ऑफ डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट who having been appointed to civil services and post in connection with the affairs of the union after 31st day of December 2003
is covered by the Central Civil Services Implementation of National Pension System Rules 2021. The benefits of invalid pension under Rule 39 and family pension under Rule 50 shall be payable to the government servant or his family, as the case may be, if the government servant had exercised an option to this effect under Rule 10 of CCS Implementation of National Pension System Rules 2021, or in whose case the default option is for availing benefits under these rules or the Central Civil Services Pension Rules 1972. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The cases where in the event of death or discharge from service on the ground of invalidation, or in the case of a government servant who having been appointed to civil services and post in connection with the affairs of the union after, तो यहाँ पर दिया है कि अपॉइंटमेंट हुआ है आफ्टर 31 दिसंबर 2003. हम ये जानते हैं कि जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है आफ्टर 31 दिसंबर 2003 उनके लिए एनपीएस लागू होगा. तो यहाँ पर जो है कि अपॉइंटमेंट हुआ है आफ्टर 31 दिसंबर 2003, सपोज जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का डेथ हो जाता है और इट मीन्स दे आर फिजिकली अनफिट, फिजिकली एंड मेंटली अनफिट टू डू द जॉब, उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगा. तो इस केस में अभी जो एनपीएस स्कीम में रूल 10 में क्लियरली लागू है कि यदि एम्प्लॉइज़ का डेथ हो जाता है और जो एक्चुअली इनवैलिड है पर्टिकुलरली फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तो एज यूजुअल मैनर जैसे ओल्ड पेंशन में था, जैसे रूल 39 अभी भी वही जो पुराना सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 उसमें जो रूल 39 में जो इनवैलिड पेंशन मिल रहा था अभी इनवैलिड वैसा ही इनवैलिड पेंशन मिलेगा. और जैसे अभी जो रूल 50 में जैसे फैमिली जो बेसिकली डेथ होने से फैमिली पेंशन मिलता है, वही भी एनपीएस होने से भी वो भी फैमिली पेंशन मिलेगा. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इट मीन्स दोज एम्प्लॉइज ऑलरेडी इट मीन्स जॉइंड द गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 31 दिसंबर 2003, बट इट मीन्स दे वर डाइड, और नेक्स्ट वन इट मीन्स डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटी ड्यू टू इनवैलिडेशन. Then under Rule 10 of the CCS Implementation of National Pension Scheme Rule 2021, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Rule 10 of the CCS Implementation of National Pension Scheme Rules 2021 वो ऑप्शन देंगे. ओके, जो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है आफ्टर 31 दिसंबर 2003 उनके लिए तो एनपीएस है, तो उनको एक ऑप्शन देना है कि यदि डेथ हो जाएगा कि सपोज गवर्नमेंट जॉब के लिए इनवैलिड हो जाएगा तब उनको इनवैलिड पेंशन और एज यूजुअल मैनर फैमिली पेंशन मिलेगा. ओके, तो ये केस में एक ऑप्शन होता है इन व्हिच केस द डिफॉल्ट ऑप्शन इज अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर दीज रूल्स और द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972. एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, हमारा ऑप्शन देना है. ऑप्शन देने से यहाँ पर भी जैसे ओल्ड पेंशन में फैमिली पेंशन मिलता है और जैसे रूल 50 में और जैसे रूल 39 में इनवैलिड पेंशन मिलता है वैसा ही मिलेगा. और यहाँ पर दो चीज़, ड्यू टू डेथ एंड ड्यू टू इनवैलिडेशन फॉर द जॉब. तो एज यूजुअल मैनर जैसा ओल्ड पेंशन में है कि इनवैलिड पेंशन मिलेगा और फैमिली पेंशन मिलेगा, वो एज यूजुअल मैनर न्यू पेंशन स्कीम में ऑप्शन दिया है, डिफॉल्ट ऑप्शन दिया है, तब ये फैमिली पेंशन मिलेगा फैमिली मेम्बर्स को और इनवैलिड पेंशन मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. Next one, the case of government servant appointed in temporary capacity to civil services and post in connection with the affairs of the union on or before 31st day of December 2003, who retired or were retired before having been appointed in a substantive capacity. The benefits under these rules shall be payable to the government servant to the extent provided in the Central Civil Services Temporary Service Rules 1965. यहाँ पर क्या दिया है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे जॉइंड द जॉब before 31st December 2003 in temporary status, and after that also it means they were retired and without any suppose permanent job. उनका टेम्पोररी स्टेटस था और उनका उसी टेम्पोररी स्टेटस में उनका रिटायरमेंट हो गया, तभी भी उनको ओल्ड पेंशन उनके लिए लागू होगा. ये जो रूल है ये क्लियरली मेंशन है कि सीसीएस टेम्पोररी सर्विस रूल्स 1965, इसको याद रखना है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सीसीएस टेम्पररी सर्विस रूल्स 1965. तो यहाँ पर हमको मिल गया कि टेम्पररी स्टेटस था जस्ट बिफोर 31 दिसंबर 2003 और उसके बाद उनका वही टेम्पररी स्टेटस में रिटायर्ड हो गया, फिर भी वो उनको ओल्ड पेंशन मिलेगा, सीसीएस टेम्पररी सर्विस रूल्स 1965.
राइट। अच्छा, अभी देखेंगे कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग एम्प्लॉइज, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉर होम एक्चुअली सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 is not applicable: railway servants, persons in casual and daily rated employment, persons paid from contingencies, persons entitled to the benefit of a CPF contributory provident fund, members of the All India services, persons locally recruited for service in diplomatic, consular or other Indian establishments in foreign countries, persons employed on contract except when the contract provides otherwise, persons whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions of the constitution or any other law for the time being in force. So ये जो है उनके लिए एक्चुअली जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 लागू नहीं होगा। ये भी वही था, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 ये से वही था, अभी अमेंडमेंट होने के बाद भी वही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा इनके लिए। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखें, किसके लिए एप्लीकेबल होगा और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो रूल 3 को चलते हैं। रूल 3 में डेफिनेशन आ जाता है और डेफिनेशन के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन हमको मिल सकता है। फर्स्ट वन, अकाउंट्स ऑफिसर मीन्स an officer who maintains the accounts of a ministry, department or office of the central government or union territory, and includes an accountant general who is entrusted with the functions of maintaining the accounts or part of accounts of the central government or union territory। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफिसर का डेफिनेशन हो गया, बेसिकली ऑफिसर ऑफ ए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरी, एंड ऑल्सो इसमें इंक्लूड करना है अकाउंटेंट जनरल जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ऑल्सो इंक्लूड्स एन अकाउंटेंट जनरल हु इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शंस ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स और पार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरी। BMM alertee means a government servant to whom the government accommodation has been allotted on payment of license fee। हम जानते हैं कि जब हमको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिला है तो उसके लिए हमको लाइसेंस फी देना पड़ता है। बेसिकली वही है, अलर्ट दिया है, इट मीन्स द गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल द गवर्नमेंट अकोमोडेशन फैसिलिटी एंड दे पे द लाइसेंस फी। बीट सी एवरेज एमोलमेंट्स। तो एवरेज एमोलमेंट्स बेसिकली हम जानते हैं कि जो पेंशन फिक्स होता है जब when the concerned employee or respective employee actually got superannuation, then at that time actually first we detect what is his basic pay। तो जितना बेसिक पे होगा उसका 50%, तो इसमें कोई भी अलाउंस इंक्लूड नहीं होगा, चाहे डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओनली आपको बेसिक पे लेना है और उसका 50%, जो बेसिक पे का 50%। Okay, just at the time of it means retirement, first we must check what is the basic pay and 50% of it is the emoluments। And for medical professionals non practicing allowance include होता है, basic pay plus non practicing allowance, और अदर कोई भी allowance include नहीं होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो average emoluments रूल 32, ओनली emoluments जो है 31, तो emoluments ओनली बेसिक पे, एमोलूमेंट्स मीन्स 50% ऑफ बेसिक पे जो पेंशन फिक्स होता है। तो एमोलूमेंट्स जब फिक्सिंग होगा तब ओनली हमको बेसिक पे लेना है, उसका 50% पेंशन फिक्स होगा। तो वैसे ही एवरेज एमोलूमेंट्स होता है। एवरेज एमोलूमेंट्स क्या है, जब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई गट इट मीन्स सुपरएनुएशन रिटायरमेंट, तो उसके जस्ट बिफोर 10 मंथ्स ओके का पूरा एमोलूमेंट्स निकालना है और उसका एवरेज निकालना है। तो दोनों को कंपेयर करना है, एक फर्स्ट वन उसका बेसिक पे चेक करना है, उसका 50% लेना है, और जस्ट बिफोर रिटायरमेंट 10 मंथ्स का एमोलूमेंट्स निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। जो भी ग्रेटर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो जो एवरेज एमोलूमेंट्स मींस एवरेज एमोलूमेंट्स एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद रूल 32। रूल 32 में एवरेज एमोलूमेंट्स है और जो जनरल एमोलूमेंट्स है वो रूल 31 में है। नेक्स्ट वन, भविष्य मीन्स an online system for sanction of retirement benefits, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and tracking of sanction and payment of pension by the government servant and the authorities concerned with sanction of pension to the government servant। ये क्या है, एक ऑनलाइन भविष्य जो एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें हम डिटेक्ट कर पाएंगे। जस्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन सिस्टम जस्ट सिंपली वी डिटेक्ट sanction of the retirement benefits like pension, gratuity और लीव एनकैशमेंट, ये सब हम सैंक्शन हुआ कि नहीं वो चेक कर पाएंगे और उसको ट्रैक कर पाएंगे।
राइट। और उसमें द अथॉरिटीज कंसर्न विद द सैंक्शन ऑफ पेंशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये पूरा कौन सा अथॉरिटी उसको सैंक्शन किया पूरा हमको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। भविष्य जो ऑनलाइन सिस्टम है हम उसको ट्रैक कर पाएंगे और डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ, कितना ग्रेचुइटी मिला, कि कितना पेंशन फिक्स हुआ है और कितना लीव एनकैशमेंट मिला, पूरा हम ट्रैकिंग कर पाएंगे। क्लियर। तो वही दिया है, एंड अथॉरिटीज कंसर्न विद सैंक्शन ऑफ पेंशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो अथॉरिटी सैंक्शन किया है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, चाइल्ड मीन्स ए सन और डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल टू रिसीव डेथ ग्रेचुइटी अंडर रूल 45 और फैमिली पेंशन अंडर रूल 50 एंड द एक्सप्रेशन चिल्ड्रेन शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, मगर अभी आपको याद रखना है कि जो डेथ ग्रेचुइटी मिलता है रूल 45 में और जो फैमिली पेंशन मिलता है रूल 50 में, ये दोनों जो रूल्स को याद रखना है, डेथ ग्रेचुइटी रूल 45 एंड फैमिली पेंशन रूल 50, उसमें बेसिकली जो चाइल्ड है वो सन और डॉटर उनको लिया जाएगा। जब हम फैमिली के ऊपर आगे में डिस्कस करेंगे, जो इट मीन्स आई विल कवर ऑल द वीडियोज, सो इट मीन्स इन सब्सिक्वेंट टाइम जस्ट आई विल डिस्कस अबाउट द फैमिली, एट दैट टाइम इजीली यू कैन डिटेक्ट। नेक्स्ट वन, डियरनेस रिलीफ मीन्स डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन एंड फैमिली पेंशन आर स्पेसिफाइड इन रूल 52। जो डियरनेस रिलीफ है वो रूल 52 में मेंशन है, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। बेसिकली डियरनेस रिलीफ होता है जैसे पेंशन एंड फैमिली पेंशन के ऊपर। फिर एमोलुमेंट्स मीन्स, एमोलुमेंट्स अभी मैं बताया रूल 31 में क्लियरली मेंशन है। ये एमोलुमेंट्स बेसिकली हम जो लास्ट बेसिक पे होता है, जो रिटायर्ड पर्सन है उसका लास्ट बेसिक पे हम देखेंगे, और ओनली एमोलुमेंट्स में बेसिक पे को लेना है। और मेडिकल प्रोफेशनल्स बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, मगर अदर के लिए एक्सेप्ट मेडिकल जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए ओनली बेसिक पे, और उसका 50% लेकर हम पेंशन फिक्स होता है। ये रूल 31 में है। नेक्स्ट वन, फैमिली पेंशन मीन्स फैमिली पेंशन एडमिसिबल अंडर रूल 50 बट डज नॉट इंक्लूड डियरनेस रिलीफ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो फैमिली पेंशन है वो रूल 50 में है, तो आगे में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी फॉरेन सर्विस, बेसिकली सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, जो फॉरेन सर्विस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स सर्विसेज इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे with the sanction of the government from any source other than the consolidated fund of India or the consolidated fund of a state or the consolidated fund of a union territory। यहाँ पर फॉरेन सर्विस क्या है, जो सर्विस में बेसिकली ऐसा जो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली जो सर्विस में इन्वॉल्व है, जिसमें जैसे हमको जनरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमको सैलरी मिलता है, यहाँ पर अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, और हम स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड लेंगे और यूनियन टेरिटरी का कंसोलिडेटेड फंड लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव हिज पे, जो पे रिसीव करता है विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम फर्स्ट वन फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन रिसीव पे, ओके, अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड वन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो ये जो सोर्सेस होता है जब पे रिसीव होता है तो उसको हम फॉरेन सर्विस बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट से मिलता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए यूनियन टेरिटरी से मिलता है, और अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, राइट। तो उसमें जब पे मिलता है तब हम उसको फॉरेन सर्विस बोलेंगे। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट ड्यूज मीन्स ड्यूज एज डिफाइंड इन सब रूल 2 ऑफ रूल 67। ये रूल 67 को रूल 67 रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ड्यूज। अच्छा, ग्रेचुइटी इंक्लूड्स सर्विस ग्रेचुइटी रूल 44 में है, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी पेबल अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 45। तो आपको सर्विस ग्रेचुइटी कवर करेगा रूल 44, जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी कवर करेगा रूल 45, एंड जो रेसिजुअरी ग्रेचुइटी है वो कवर करेगा रूल 45, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रूल को याद रखना है। अब अगर आगे मैं ग्रेचुइटी के ऊपर सेपरेटली एक वीडियो लाऊंगा। तो नाउ जस्ट यू रिमेंबर सर्विस ग्रेचुइटी अंडर रूल 44 and basically retirement gratuity or death gratuity, it is coming under rule 45, and similarly residuary gratuity payable under sub rule 3 of rule 45. Next one, head of the department means an authority specified in schedule 1 to the delegation of financial powers rules 1978। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीन्स एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड, कहाँ पर स्पेसिफाई हुआ है ना, शेड्यूल 1 में, टू द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 1978। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेगा। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो अथॉरिटी स्पेसिफाई हुआ है शेड्यूल 1 में, और एक है अकॉर्डिंग टू द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978। 1978 ईयर को याद रखना है। एंड इंक्लूड सच अदर अथॉरिटी और पर्सन whom the president may by order specify as head of a department, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हेड ऑफ ऑफिस मीन्स
ए गेजेटेड ऑफिसर declared as Rule 14 of the Delegation of Financial Power Rules 1978 and includes such other authority or person whom the competent authority may by order specify as head of office. और यहाँ पर याद रखना है रूल 14 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 में जो गेजेटेड ऑफिसर को हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर किया गया है. ओके, नेक्स्ट वन, लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट मीन्स द फंड एडमिनिस्टर्ड बाय बॉडी which by law or rule having the force of law comes under the control of the government and over whose expenditure the government remains complete and direct control. जो भी लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट मीन्स तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा. नेक्स्ट वन, माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो माइनर मीन्स ओके, जो पर्सन 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है उसको माइनर डिक्लेयर किया गया है सीसीएस पेंशन रूल्स 2021. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी, पेंशन कौन डिस्पर्स करता है मीन्स फर्स्ट वन, बैंक सिलेक्टेड इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स एज स्पेसिफाइड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट वन, बैंक सिलेक्टेड आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई, इसको याद रखना है. सेकेंड, डिस्पर्सिंग अथॉरिटी पोस्ट ऑफिस. थर्ड वन, ट्रेजरी इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी. फोर्थ वन, अकाउंट्स ऑफिसर. ये चार चीज को याद रखना है क्योंकि ऑप्शन आएगा. फर्स्ट वन, द बैंक्स आफ्टर कंसल्टेशन विथ आरबीआई. सेकेंड वन, पोस्ट ऑफिस. थर्ड वन, ट्रेजरी इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी. फोर्थ वन, अकाउंट्स ऑफिसर. ये है पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. पेंशन पेमेंट ऑर्डर इंक्लूड्स ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर. ये जो अभी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 आया, जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होगा बेसिकली वो ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर होगा, थ्रू ऑनलाइन होगा पेंशन पेमेंट ऑर्डर. नेक्स्ट वन, क्वालिफाइंग सर्विस मीन सर्विस रेंडर्ड व्हाइल ऑन ड्यूटी और अदरवाइज व्हिच शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशंस एंड ग्रेचुइटीज एडमिसिबल अंडर दीज रूल्स. हम जानते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस बेसिकली हम कंसिडर करते हैं जब बेसिकली पेंशन और ये ग्रेचुइटी केस में क्वालिफाइंग सर्विस देखा जाता है. तो ये जो क्वालिफाइंग कुछ है जो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, जैसे अनऑथराइज एब्सेंस जो है, डाइज नॉन है कि बेसिकली सस्पेंशन पीरियड फॉलोड विथ मेजर पेनल्टी. राइट, और जैसे ओवर स्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, ये सब क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. कि सपोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट्स. ओके, ये सब क्वालिफाइंग तो आगे में हम उसको डिस्कस करेंगे. पहले भी मेरा जो वीडियो था सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 उसमें मैं डिस्कस किया था, तो आगे में हम क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो हमको यहाँ पर याद रखना है कि जब हम जो ग्रेचुइटी फिक्स होता है और जब पेंशन फिक्स होता है तब क्वालिफाइंग सर्विस देखा जाता है. राइट, नेक्स्ट वन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड्स पेंशन और सर्विस. रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे बेसिकली आपका क्या क्या आता है, पेंशन आता है, सर्विस ग्रेचुइटी एंड रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ये सब एडमिसिबल होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स में. सर्विस बुक इंक्लूड्स सर्विस रोल इफ एनी. ट्रेजरी इंक्लूड्स ए सब ट्रेजरी. ये सब डेफिनेशन में आ गया. अभी चलो रूल 4 को चलेंगे, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021. ऑप्शन ऑन ट्रांसफर फ्रॉम नॉन पेंशनरी टू पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट. यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि जब ऑप्शन होता है, जब एक कंसर्न एम्प्लॉई ट्रांसफर फ्रॉम नॉन पेंशनरी टू पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 4 में मेंशन है. ये रूल को याद रखना है. जस्ट टू सी, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉन पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट टू पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट has an option to elect to be governed by the pension rules. The option is required to be exercised within 6 months of the date of issue of the order of his permanent transfer, or if he is on leave on that day, then within 6 months of his return from leave, whichever is later. बहुत कॉमन है. यदि गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम नॉन पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट टू पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट. ओके, पहले सपोज वो नॉन पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट में था बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसका ट्रांसफर हो गया पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट को, तो वहां पर उसको ऑप्शन देना होता है. विद इन 6 मंथ्स उसको ऑप्शन देना है. तो ये जो विद इन 6 मंथ्स है आपको याद रखना है. यदि वो लीव होता है तो जब वो लीव से रिटर्न कर जाता है फिर विद इन 6 मंथ्स ही मस्ट गिव द ऑप्शन. ओके, तो आपको याद रखना है ये जो विद इन 6 मंथ्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल 4 में मेंशन है. राइट, अभी रूल 5 को चलेंगे, रेगुलेशन ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन. ये रूल को अच्छे से याद रखना है.
इट इज़ रूल 5 रेगुलेशन ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन, इसमें देखेंगे फर्स्ट वन, एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स इन फोर्स at the time when a government servant retires or retired or discharged or is allowed to resign from service or dies as the case may be. 2 में है क्लियरली दे दिया है, द डे ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड or is discharged or is allowed to resign from service as the case may be shall be treated as his last completed working day and the date of death shall also be treated as a completed working day. जिस डे में गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायर होता है ओके और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसको अलाउ किया जाता है रिजाइन करने के लिए, वो डे इंक्लूड होगा, ठीक है, सर्विस में, क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा और वो लास्ट वर्किंग डे होगा. और भी याद रखना है जिस डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ होता है वो डे भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा. तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड दैट इन ए केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट or death was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension. यहाँ पर दिया गया है जस्ट बिफोर रिटायरमेंट यदि गवर्नमेंट सर्वेंट लीव में था, उसका रिटायरमेंट हो गया, तो वो जो रिटायरमेंट डेट है, जो रिटायरमेंट डे है, वो उसको लीव माना जाएगा. जैसे जस्ट बिफोर रिटायरमेंट एक्चुअली वो लीव में था और उसका डेथ हो गया तो उसको भी लीव माना जाएगा. तो फर्स्ट याद रखना है कि जस्ट बिफोर रिटायरमेंट कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव में था और उसका रिटायरमेंट हो गया, उसको लीव माना जाएगा डे ऑफ रिटायरमेंट. और वैसा ही जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो लीव में था, उसका डेथ हो गया, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट को बेसिकली भी लीव माना जाएगा, क्योंकि लीव में था, डेथ हो गया, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है उसको लीव माना जाएगा. और जैसे जस्ट बिफोर रिटायरमेंट सपोज वो सस्पेंशन में है और कंसर्न एम्प्लॉई रिटायर हो गया, तो वो जो बेसिकली डेट ऑफ रिटायरमेंट को वो सस्पेंशन माना जाएगा. और वैसा ही जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो एब्सेंस है, जैसे अनऑथराइज एब्सेंस है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट को भी वही अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा. राइट, वही बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोवाइडेड दैट इन ए केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension. Right? तो फर्स्ट चीज़ ये है कि जो रिटायरमेंट डे है और जिस डेट में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसको अलाउ कर दिया जाता है रिजाइन करने के लिए, वो डे लास्ट वर्किंग डे होगा. ओके, वो सर्विस में इंक्लूड होगा. और जिस डे में कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है उसको भी सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा. और यहाँ पर यदि है जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो लीव में है और रिटायरमेंट हो गया, तो डेट ऑफ जो डे ऑफ रिटायरमेंट है उसको लीव माना जाएगा. जैसे वैसे ही जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो लीव में था, उसका डेथ हो गया, तो डे ऑफ रिटायरमेंट को लीव माना जाएगा, क्योंकि लीव में था, डेथ हो गया, तो लीव माना जाएगा. जस्ट बिफोर रिटायरमेंट suppose the employee is in suspension, it means सस्पेंशन चल रहा है पीरियड, और डे ऑफ रिटायरमेंट को भी वही सस्पेंशन माना जाएगा. सिमिलरली जस्ट बिफोर रिटायरमेंट सपोज द कंसर्न एम्प्लॉई इट इज एन अनऑथराइज एब्सेंस, तो डे ऑफ रिटायरमेंट को भी वही अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा. चलो अभी रूल 6 लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का वीडियो का ये लास्ट रूल है. A government servant shall not earn 2 pensions in the same service or post at the same time or by the same continuous service. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है. तो एक पर्टिकुलर पोस्ट और सेम सर्विस में 2 पेंशन एक ही साथ वो नहीं ले सकता. सो साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट टेक 2 पेंशन ऑन द सेम पोस्ट और ऑन सेम सर्विस. यहाँ पर दिया है 2 एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 19 और रूल 20. अब जो रूल 19 है वहाँ पर क्या है, एक कॉम्पेंसेशन पेंशन होता है. कॉम्पेंसेशन पेंशन क्या है, जैसे पोस्ट अबोलिश हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट एक पोस्ट में है, वो अबोलिश हो गया और उसका इक्वल स्टेटस पोस्ट नहीं है, उसको लोअर पोस्ट दिया जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया. अच्छा, उसका पोस्ट अबोलिश हो गया, इक्वल स्टेटस पोस्ट नहीं है, तब उसको रिटायर कर दिया जाएगा, उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलेगा. तब उस केस में उसके लिए ऑप्शन है, जब वो री एम्प्लॉयमेंट होगा उसके लिए ऑप्शन है, वो री एम्प्लॉयमेंट होगा और 2 ऑप्शन है,
चाहे वो जो कॉम्पेंसेशन पेंशन मिल रहा है उसको रिफंड करेगा, जो ग्रेचुइटी मिला है उसको रिफंड करेगा, और पास्ट सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो रूल 20 है वो इनवैलिड पेंशन है। सपोज एक समय इनवैलिड पेंशन में रिटायर कर दिया गया, इट मीन्स ड्यू टू फिजिकली एंड मेंटली अनफिट द पेंशन, बेसिकली द एम्प्लॉय रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन पेंशन, और उसके बाद वो री एम्प्लॉयमेंट ले सकता है फिट होकर। तो ये दोनों को छोड़कर और सभी में, जैसे सुपर अन्वेषण पेंशन, सुपर अन्वेषण पेंशन जब 60 हो जाता है, अब हम जानते हैं 60 पर्टिकुलरली 60 एज में इट मीन्स रिटायर हो जाता है। रिटायरिंग पेंशन, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, यहाँ पर क्या है, जब मेजर पेनल्टी में पनिशमेंट में कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है। और कंपासियोनेट अलाउंस, जिसको डिसमिसल कर दिया जाता है उसको कंसिडर करके उनको कंपासियोनेट अलाउंस मिलता है। तो ये सब केस में क्या होगा, यदि इज सब्सिक्वेंटली री एम्प्लॉयड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ए सेपरेट पेंशन और ग्रेचुइटी फॉर द पीरियड ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली रूल 19 और 20, बेसिकली कॉम्पेंसेशन पेंशन, इनवैलिड पेंशन, ये दोनों को छोड़ के और जो भी पेंशन, सुपर अन्वेषण पेंशन, ओके 60 एज हो गया, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरिंग पेंशन, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, बेसिकली इन केस ऑफ मेजर पेनल्टी द कंसर्न एम्प्लॉई कंपल्सरली रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब, or compassionate allowance due to dismissal or removal. At that time the appointing authority suppose consider that the concerned it means person will get compassionate allowance. तो ये सब केस में यदि रीएम्प्लॉयमेंट होता है तब उस केस में सेपरेट पेंशन और ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। मगर सेपरेट पेंशन और ग्रेचुइटी मिल सकता है कब, ना कॉम्पेंसेशन पेंशन और इनवैलिड पेंशन। जो रूल 19 है कॉम्पेंसेशन पेंशन और रूल 20 में है बेसिकली इनवैलिड पेंशन। तो ये सब आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज प्रीवियसली अपॉइंटेड इन एन ऑटोनोमस बॉडी और ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड वाज सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड विथ प्रॉपर परमिशन ऑफ दैट बॉडी और अंडरटेकिंग इन द गवर्नमेंट सर्विस ऑन और बिफोर 31 December 2003 will be eligible for pension and gratuity for the service rendered in the government in addition to the pension and gratuity if any received by him from the autonomous body or the public sector undertaking for the service rendered in that body or undertaking। इसको थोड़ा समझा देता हूँ। 31 December 2003 के पहले एक्चुअली वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट वो ऑटोनोमस बॉडी में था और कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में था, राइट। ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिफोर 31 December 2003 the government servant was working in autonomous body or a public sector undertaking, but subsequently through technical resignation he got appointment in direct central government department। पहले वो ऑटोनोमस बॉडी में था और कोई पीएसयू में था और अभी वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अभी वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, जस्ट भाई सेम बिफोर 31 December 2003। तो इस केस में क्या होगा आपको याद रखना है, जब ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू में जब काम कर रहा था और वो टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया तो उस केस में उसको ऑटोनोमस बॉडी उसका जितना जॉब क्वालिफाइंग सर्विस था वो पेंशन लेगा, पेंशन और ग्रेचुइटी उसको मिलेगा। और वो अभी आ गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिस डेट में ज्वाइन किया उसी डेट से उसका क्वालिफाइंग सर्विस काउंट किया जाएगा और उसको सेपरेटली उसको पेंशन ग्रेचुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। मगर यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई बिफोर 31 December 2003 यदि ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा था कि पीएसयू में काम कर रहा था और वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आ गया, तब जो ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू में जो सर्विस था वो ये जो न्यू जो डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आ गया उस समय उसका क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। जो ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू में जो सर्विस किया था वो यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑटोनोमस बॉडी को सेपरेट कर दो, जो ऑटोनोमस बॉडी में जितना दिन काम किया और जितना क्वालिफाइंग सर्विस है वो रिटायरमेंट बेनिफिट ले लिया, और जब डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आया उसको सेपरेट बेनिफिट पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट को आ गया तब जो पास्ट सर्विस था, जो फॉर्मर सर्विस था ऑटोनोमस बॉडी का कि पीएसयू का, वो सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस में यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंक्लूड, डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान देना है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जब वही बिफोर 31 December 2003 ओके ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू में जितना दिन काम किया ओके उसके लिए सेपरेट उसको पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा, और फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आ गया उसके लिए उसका क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से उसको पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा। मगर जो ऑटोनोमस बॉडी में पीएसयू में काम किया जितना दिन जो क्वालिफाइंग सर्विस है यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में।
तो वही चीज़ दिया है, राइट। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मगर यहाँ पर जो ये जो नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन द ऑटोनोमस बॉडी और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग and the service rendered under the government shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire service rendered by the government servant in the autonomous body or the public sector undertaking and the government and the emoluments on retirement from government। उसको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडी में जो काम किया, ऑटोनोमस और पीएसयू में जो काम किया, उसके लिए सेपरेट पेंशनरी बेनिफिट मिला और वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट को आ गया टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर। यहाँ पर डायरेक्ट डिपार्टमेंट में उसको सेपरेट पेंशनरी बेनिफिट मिला, ठीक है। ये सब जो हुआ बिफोर 31 दिसंबर 2003। पहले वो बिफोर 31 दिसंबर 2003 वो ऑटोनोमस बॉडी में था कि पीएसयू में था और वो डिपार्टमेंट को आ गया, तो उसको दोनों का सेपरेट मिलेगा। जो क्वालिफाइंग सर्विस है ऑटोनोमस बॉडी का उसके लिए सेपरेट पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा और जो गवर्नमेंट सर्वेंट में काम कर रहे हैं उसको सेपरेट पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा। पर यहाँ पर जो ऑप्शन है बेसिकली यदि वो सर्विस कंटिन्यू होता, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी में कि चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो इन दिस केस एक्चुअली कंबाइंड पेंशनरी बेनिफिट एंड कंबाइंड ग्रेचुइटी इट वुड नॉट एक्सीड इफ द सर्विस वुड हैव कंटिन्यू इन ऑटोनोमस और पीएसयू और इन डिपार्टमेंट। तो आपको जो मैक्सिमम जो ग्रेचुइटी है वो दोनों मिलाकर वहां पर कंबाइंड हो गया, ऑटोनोमस बॉडी का ग्रेचुइटी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ग्रेचुइटी सेपरेट क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से मिलेगा। सिमिलरली सेपरेट हिसाब से पेंशन मिलेगा, मगर यहां पर वो एक्सीड नहीं करेगा यदि सर्विस कंटिन्यू होता, चाहे वो कंटिन्यू होता ऑटोनोमस बॉडी की, चाहे वो कंटिन्यू होता गवर्नमेंट बेसिकली डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर एक्चुअली वो एक्सीड नहीं करेगा जो सब्सिडी एंड पेंशन को, वही यहाँ पर बोला है। तो कंबाइंड मिलेगा, मगर द कंबाइंड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी एंड द अमाउंट ऑफ पेंशन इफ द सर्विस वुड हैव कंटिन्यू इन ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू और इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, दो एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा देख लेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट shall be deemed to have been appointed in the government with proper permission if he had applied for the service or post in the government with previous permission of the autonomous body or the public sector undertaking, and the order of the autonomous body or the public sector undertaking clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the government with proper permission of the autonomous body or the public sector undertaking as the case may be। यहाँ पर है कि वो ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा था और इन जो ऑर्डर इशू हुआ, जो रिलीफ ऑर्डर इशू हुआ, उसमें क्लियरली मेंशन है, जो ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू वो क्लियरली मेंशन किया है कि थ्रू टेक्निकल रेजिग्नेशन बेसिकली द कंसर्न एम्प्लॉई हैज रिलीज्ड फ्रॉम द जॉब एंड गोइंग टू जॉइन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहां पर मेंशन होगा, तब वो उसको सेपरेट, वहां पर सेपरेट पेंशन मिलेगा। जो ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू में जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके हिसाब से पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा और टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आ गया और डिपार्टमेंट में जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको सेपरेट पेंशनरी बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर वो ऑर्डर में मेंशन होगा, बेसिकली ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू वो उनका ऑर्डर में मेंशन करेंगे थ्रू टेक्निकल रेजिग्नेशन ही इज गोइंग टू जॉइन द डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये एक्सप्लेनेशन 1 है। एक्सप्लेनेशन 2 में देखेंगे, पेंशन इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन एन ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शैल बी पेड बाय द कंसर्न्ड ऑटोनोमस बॉडी और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना दिन वो ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम किया है, जितना क्वालिफाइंग सर्विस है, उसके हिसाब से उसको पेंशनरी बेनिफिट उससे मिलेगा। उसका सर्विस वो जब डायरेक्ट डिपार्टमेंट को आ जाएगा तो ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू का जो क्वालिफाइंग सर्विस है यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, इट मीन्स पास्ट सर्विस इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू टू डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इस केस में जो ऑटोनोमस बॉडी में जो क्वालिफाइंग सर्विस है कि पीएसयू में जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके हिसाब से उसको पेंशनरी बेनिफिट वहां पर मिल जाएगा एंड देयर शैल बी नो लायबिलिटी। तो इसके हिसाब से ये समझा जाता है कि वो जब डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आता है तो अब ये गवर्नमेंट सोचता है कि ये हमारा लायबिलिटी नहीं है कि वो पास सर्विस जो ऑटोनोमस बॉडी में और पीएसयू में किया है, और हमारा ये लायबिलिटी नहीं है कि उसका जो क्वालिफाइंग सर्विस को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, पास सर्विस को यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे, वो ये हमारा लायबिलिटी नहीं है। तो वो जो क्वालिफाइंग सर्विस था ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू में, उसके हिसाब से उसको वहां पर पेंशन मिलेगा, और यहां पर जब स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसके हिसाब से क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से मिलेगा। मगर वो नहीं है डायरेक्ट डिपार्टमेंट टू डायरेक्ट, सपोज एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट डिपार्टमेंट टू आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर और एक डिपार्टमेंट को गया, तो इस केस में जो पास्ट क्वालिफाइंग सर्विस है वो इंक्लूड होगा, मगर यहां पर नहीं होगा। जब ऑटोनोमस बॉडी टू डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहां पर पास्ट सर्विस इंक्लूड नहीं होगा, मगर वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहां पर फॉर्मर सर्विस इंक्लूड होगा।
तो यही पर दिया है क्लियरली। तो ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, देयर शैल बी नो लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स पेंशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन सेड ऑटोनोमस बॉडी और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। जब डायरेक्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले जो भी ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू में जो क्वालिफाइंग सर्विस है कि ये जो डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि हमारा ये लाइबिलिटी नहीं है, वो कितना काम किया है ऑटोनोमस बॉडी में और पीएसयू में, तो जो काम किया है वो यहाँ पर हमारा क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। उसको सेपरेट पेंशनरी बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर डायरेक्ट डिपार्टमेंट में पेंशनरी बेनिफिट उसका क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से मिलेगा। तो ये था आज का फास्ट वीडियो। तो विद इन वीक डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर ऑल द रूल्स ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। ये कुछ नहीं है, वही है सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, मगर अभी दिसंबर 2021 में उसको गवर्नमेंट पूरा अमेंडमेंट करके पूरा न्यू रूल्स ले आया। इट इज रिलेटेड टू द ओल्ड पेंशन। आपको ये सोचना नहीं है कि रिलेटेड टू द एनपीएस, इट इज रिलेटेड टू द ओल्ड पेंशन। जस्ट दोज एम्प्लॉइज इट मीन्स ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब बिफोर 31 दिसंबर 2003। तो आज मैं डिस्कस किया 1 to 6, सो आगे मैं पूरा कवर करूंगा, जैसे कम्यूटेड पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेचुइटी, क्वालिफाइंग सर्विस, एमोलुमेंट्स, ये पूरा डिस्कस करूंगा। तो ऑलरेडी मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, मगर अभी उसका जरूरत नहीं है, अभी तो ये संशोधन होकर आ गया सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, राइट। So my friends, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Also my link is there in description box. Please click on it and try to avail all my videos. It would be very useful for you for principal exams and departmental promotion exams and state government principal exams and other state government department exams. So please with patience, just you go through the video till the end and try to acquire knowledge. Thank you. Namaskar to all of you.